Good morning, children. How are you all? Today we are meeting again for the class. In today's class, we will study about the revision part given on page number 41. But before that, let us see about two friends, what they are talking with each other. There were two friends. Vikas and Vrunda. They were very good friends. Vikas was sincere, but Vrunda was naughty. You can see here. One day, Vikas decided to ask some questions to Vrunda. Vrunda, let me ask you some questions. Vrunda says, I am ready, Vikas. Vikas is asking, a person who sings is known as? Vrunda says, ha ha, it's very easy. The answer is singer. You can see the picture. Okay, correct. A person who delivers letters is? Let us see what Vrunda answers. Vrunda says, the answer is postman. Correct. Now Vikas is asking, a person who stitches our clothes is? Vrunda says, the answer is tailor. You can see the picture. Wow, Vrunda, you have answered correctly. Thanks, Vikas. Now, let's play. તો સ્ટુડન્ટ્સ, આપ સૌએ જોયું, અહીંયા બે મિત્રો વચ્ચે સંવાદ છે, વિકાસ અને વૃંદા. વિકાસ પ્રશ્નો પૂછે છે અને વૃંદા જવાબ આપે છે. બધા જવાબ એક શબ્દમાં છે અને પ્રશ્નમાં છુપાયેલા ક્લૂથી વૃંદા જવાબ આપી શકે છે. આવી જ રીતે તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં પણ પેજ નંબર 41 ઉપર રિવિઝનમાં એક એક્સરસાઇઝ આપેલી છે. તો ચાલો આપણે એને જોઈએ અને જવાબો શોધવાના પ્રયત્નો કરીએ. કમ્પ્લીટ ધ ટેબલ. ડિયર સ્ટુડન્ટ્સ, આ કોષ્ટક આપ સૌના પાઠ્યપુસ્તકમાં આપેલું છે. અહીં આપ જોઈ શકો છો, વાક્ય કોલમ એમાં લખેલા છે. કોલમ બી જવાબ લખવા માટે જગ્યા આપેલી છે અને છેલ્લા કોલમમાં આપણને હિન્ટ માટે એક એક એલ્ફાબેટ આપેલું છે. જેમ કે આપ સૌ જોઈ શકો છો, પહેલામાં સી આપેલું છે, બીજા વાક્ય માટે એસ આપેલું છે અને ત્રીજા વાક્ય માટે પણ એસ આપેલું છે. તો આના ઉપરથી એટલો તો ખ્યાલ આવે છે ને મિત્રો, કે આપણું જે પણ જવાબ હશે એ જે તે આલ્ફાબેટથી જ શરૂ થશે. હવે વાક્ય સમજીને વિચારીને આપણે તેના જવાબો લખીશું. ચાલો પહેલું વાક્ય જોઈએ. આપણું પહેલું વાક્ય છે, a game in which participants answer the questions. મિત્રો, એક્ટિવિટી 4 યુનિટ 1 Q for questionમાં તમે આના વિશે
ભણી ગયા છો? શું યાદ આવે છે? એક ટીચર પ્રશ્નો પૂછે છે અને બાળકો જવાબ આપે છે. એક ક્વિઝ આપ સૌએ યુનિટ 1માં એક્ટિવિટી 4માં જોયું છે. તો વિચારો કે એને આપણે કયો બીજા શબ્દના નામે ઓળખી શકીએ છીએ? આપનો જવાબ આલ્ફાબેટ સી થી શરૂ થશે. Yes, the answer will be contest. CONTEST, contest. કોઈ પણ કોન્ટેસ્ટ હોય, કોઈ પણ સ્પર્ધા હોય, એમાં પાર્ટિસિપન્ટ્સ ભાગ લે છે અને પ્રશ્નોના જવાબ આપે છે. ચાલો આપણે બીજું વાક્ય જોઈશું. A person who keeps a record of points in a competition. ચલો મિત્રો વિચારો. આપ સૌ ઘરે પોતાના ભાઈ બહેન સાથે આ રમત રમતા જ હશો. ધારો કે મમ્મી પ્રશ્નો પૂછે અને તમે બધા જ ભાઈ બહેન મળીને ગ્રુપમાં એક એક કરીને જવાબ આપો, તો કોઈ એવો વ્યક્તિ હોય છે તમારા જવાબોનું ગુણાંકન લખતો હોય છે કે કોને કેટલા પોઈન્ટ્સ મળશે. તો આપણે એને શું કહીએ છીએ? વિચારો. Yes, correct. You are thinking the right answer. He is scorer. So, a person who keeps a record of points in a competition is a scorer. SCORER. સ્ટુડન્ટ્સ, તમે જોયું હશે ક્રિકેટમાં પણ ટીવીમાં નીચે સ્કોર લખેલા આવે છે. બેડમિન્ટન અથવા ટેનિસના ગેમમાં પણ જે રેફરી હોય છે, જે ગેમનું સંચાલન કરે છે, જે રમતનું સંચાલન કરે છે, એ સ્કોર વચ્ચે વચ્ચે બોલતા હોય છે. કોઈ પણ ક્વિઝ હોય એમાં પણ કદાચ ઘણી વખત કમ્પ્યુટર દ્વારા ગુણાંકન થાય છે અને ઘણી વખત કોઈ એક વ્યક્તિ ઊભા રહીને બોર્ડ ઉપર માર્ક્સ જે તે ગ્રુપના લખે છે. તો એ વ્યક્તિને કહેવાય છે સ્કોરર. ચાલો આગળ જોઈએ. આપણું ત્રીજું વાક્ય છે ધ એનર્જી વી ગેટ ફ્રોમ ધ સન. એના માટે પણ જે હિન્ટનું આલ્ફાબેટ આપેલું છે છેલ્લા કોલમમાં, એ છે એસ. ચાલો વિચારો આનો જવાબ શું હોઈ શકે? આના વિશે આપ યુનિટ સન ટૂરમાં ભણી ગયા છો. Yes, right answer. We get solar energy from the sun. SOLAR, solar. ENERGY, solar energy. ચાલો હવે આપણે બીજા વાક્યો જોઈશું. ચોથું વાક્ય છે a person who fights to make his or her country free. ક્લુ માટે જે આલ્ફાબેટ આપેલું છે છેલ્લા કોલમમાં, એ છે એફ. તો હવે વિચારો આનો જવાબ શું હોઈ શકે? આપ સૌને હું પણ બીજી હિન્ટ આપી શકું. આપ મહાત્મા ગાંધી વિશે જાણો છો, સુભાષચંદ્ર બોઝ વિશે જાણો છો, ચંદ્રશેખર આઝાદ વિશે પણ તમે ટીવીમાં જોયું હશે. આ લોકો કોણ હતા? વિચારો અને વાક્ય સાથે એને જોડો તો આપને ખ્યાલ આવશે કે આપણો જવાબ શું હોઈ શકે. યસ, યુ આર રાઇટ. ધ આન્સર ઇઝ ફ્રીડમ ફાઇટર. જે દેશ માટે લડે છે એને આપણે ફ્રીડમ ફાઇટર કહીએ છીએ. તો ચાલો આપણે જોઈએ ફ્રીડમ ફાઇટર. પાંચમું વાક્ય છે અ પર્સન હુ હોસ્ટ્સ અ પ્રોગ્રામ ઓર અ કોમ્પિટિશન. ક્લુ માટે આલ્ફાબેટ આપેલું છે એ. વિચારો. મિત્રો, શરૂઆતના બે વાક્યોમાં આપણે જે જોયું હતું કે જે કોઈ પણ પાર્ટિસિપેટ કરે છે કોઈ
કોમ્પિટિશનમાં એને કોન્ટેસ્ટ કહેવાય છે અને જે ગુણાંકન કરે છે એને સ્કોરર કહેવાય છે. તો એને ધ્યાનમાં રાખીને જ આ વાક્યનો જવાબ આપ શોધી શકો છો. આપણે કોઈ પણ કોમ્પિટિશનમાં 3 વ્યક્તિઓની જવાબદારી ખૂબ જ અગત્યની હોય છે. એક તો સ્પર્ધા જે ગુણાંકન કરે છે, જે સ્કોર લખે છે એ વ્યક્તિ, અને ત્રીજું વ્યક્તિ કોણ? જે એ સ્પર્ધાનું સંચાલન કરે છે. તો એને શું કહીએ છીએ આપણે? યસ, હી ઇઝ નોન એઝ ધી એન્કર. આપ સૌએ કૌન બનેગા કરોડપતિ તો જોયું જ હશે ને ટીવી ઉપર. કૌન બનેગા કરોડપતિ જે ક્વિઝ છે એમાં એન્કર કોણ છે? યસ, શ્રી અમિતાભ બચ્ચન ઇઝ ધી એન્કર because he is conducting the competition. So our answer is anchor. Next sentence છે, a person who steals things, money from the other's house. A person who steals things, money from others' house. ક્લુ માટે જે આલ્ફાબેટ છે એ છે ટી. બહુ જ સરળ છે, વેરી ઇઝી. યસ, ધ આન્સર ઇઝ thief. છેલ્લું વાક્ય છે, a person who plays music. આનાથી સરળ કશું જ ન હોઈ શકે. આપણે અગાઉ એપિસોડમાં આમના વિશે ભણી ગયા છીએ. વિચારો, અને ક્લૂનું આલ્ફાબેટ પણ આપને આપેલું છે. યસ, વેરી નાઇસ. મ્યુઝિશિયન. ધ આન્સર ઇઝ મ્યુઝિશિયન. Let us see all these words again. Contest, scorer, solar energy, freedom fighter, anchor, thief, musician. મારી સાથે એકવાર બધા બોલશે. Contest. Very good. Scorer. Nice. Solar energy. Freedom fighter. Anchor. Thief. Musician. તો બાળ મિત્રો, ખૂબ મજા પડી ને? જેમ આપણે કોઈ પણ એક વાક્ય માટે એક શબ્દમાં એનો જવાબ લખીએ છીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, અ પર્સન who teaches the students. A person who teaches the students. શું જવાબ આવશે? ક્લુ માટે આલ્ફાબેટ છે ટી. વિચારો, બધા ઘરે બેઠા કહે છે ટીચર તમે પોતે. ટી ફોર ટીચર. ટીચર teaches the students. તો આપ સૌ આ એક્સરસાઇઝ ખૂબ સારી રીતે સમજી ગયા છો. We will meet in the next class. Till then, stay safe, study at home. Tata. नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हमने पिछले एपिसोड में शब्दकोश के क्रम के बारे में जानकारी प्राप्त की थी. आज हम भाषा सज्जता की ऐसी ही एक प्रवृत्ति यहाँ पर करने वाले हैं. वैसे तो आप सब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, वचन, उपसर्ग, प्रत्यय इन सारी बातों से परिचित हो चुके हैं, लेकिन पुनरावर्तन के जरिए हम उन्हीं बातों को एक बार फिर से याद कर लेते हैं ताकि हम अच्छी तरह से इन सारी भाषा की बातों को समझ सके. आइए लिंग परिवर्तन से जुड़ा हुआ एक उदाहरण यहाँ पर देख लेते हैं. तो देखिए जरा, मैं यहाँ पर आपको शब्द दिखा रहा हूँ. अब तो आप तुरंत इस शब्द को देखकर इस शब्द का स्त्रीलिंग क्या है ये आप बता सकते हैं, क्योंकि इसका अभ्यास हमने किया है ना. तो अब तो आप मेरे साथ शब्द पढ़ते जाइए और उत्तर भी देते जाइए. युवक, और उसका स्त्रीलिंग होगा, हाँ आपका उत्तर बिल्कुल सही है, युवती, है ना. और जब
इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करेंगे तो कई सारे वाक्य हम बना सकते हैं। अगर मैं कहता हूं कि मैं युवक हूं, वह युवक खड़ा है, वहां पर युवक जा रहा है, यानी कि कई सारे वाक्य आप बना सकते हैं। यहां पर मैं आपको युवक से जुड़ा हुआ एक वाक्य दिखाता हूं कि भाई वहां एक युवक खड़ा है ना। जब युवक की बात करते हैं तो इसी प्रकार से वाक्य में बोलना या लिखना पड़ता है कि भाई युवक का युवती, तो युवती से जुड़ा हुआ वाक्य क्या होगा, वहां एक युवती खड़ी है ना, खड़ा है और खड़ी है, यानी कि पूरे वाक्य में भी किस प्रकार के बदलाव होते हैं ये भी हमें यहाँ पर समझना है। इन उदाहरणों के जरिए हम उसी बात को और ज्यादा गहराई से समझने का यहाँ पर प्रयत्न कर रहे हैं। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। पंडित, तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, हाँ पंडिताइन। और वाक्य भी सोचिए जरा, कई सारे वाक्य आप बना सकते हैं पंडित शब्द का प्रयोग करके। मैं यहाँ पर आपको एक वाक्य दिखा रहा हूँ, पंडित पूजा कर रहे हैं। अब सोचिए कि भाई पंडित की जगह पर अगर मैं पंडिताइन शब्द रख देता हूं तो क्या बाकी का वाक्य वही का वही चलेगा, नहीं चल सकता। तो वाक्य में कौन से बदलाव आएंगे, जरा सोचकर वाक्य बताइए। हाँ, पंडिताइन पूजा कर रही है। आइए अगला उदाहरण देखते हैं। छात्र, तो अब स्त्रीलिंग तो आपको पता ही है, हाँ छात्रा। और इनसे जुड़े हुए कई सारे वाक्य, जैसे कि आप कह सकते हैं कि भाई मैं छात्र हूं, है ना, छात्र किताब पढ़ रहा है, छात्र स्कूल जा रहा है। कई सारे वाक्य इस शब्द से जुड़े हुए। और जब छात्र का छात्रा हो जाता है स्त्रीलिंग, तब छात्रा से भी इसी प्रकार से वाक्य आप बना सकते हैं। लेकिन जब छात्रा शब्द का प्रयोग करते हैं तो पूरे वाक्य में भी बदलाव आ जाते हैं। आइए इस उदाहरण से देखते हैं। छात्र स्कूल जा रहा है, और जब छात्र का छात्रा कर देते हैं तो हाँ छात्रा स्कूल जा रही है ना। तो ऐसे अभ्यास आपको खुद को भी करने हैं। आइए अगला उदाहरण देख लेते हैं। अध्यापक, और उसका स्त्रीलिंग क्या होगा, हाँ अध्यापिका। अब इन दो शब्दों का हमें वाक्य प्रयोग करना है। तो मैं यहाँ पर अध्यापक वाला वाक्य आपको दिखा रहा हूं। अध्यापक पढ़ा रहे हैं, तो अब अध्यापिका से जुड़ा हुआ वाक्य जरा आपको बोलना है, अध्यापिका पढ़ा रही है। आइए अगला उदाहरण देखते हैं। मोर, तो हाँ मोरनी। अब वाक्य बनाइए जरा, जैसे कि मोर नाच रहा है तो मोरनी नाच रही है। इसी प्रकार से सेठ, तो सेठानी। और उसका वाक्य प्रयोग मैंने यहाँ पर इस प्रकार से रखा है कि भाई अब यहाँ पर आपको ये सोचना है कि मैंने पहले स्त्रीलिंग वाला वाक्य आपको दिखा रहा हूं मैं यहाँ पर कि भाई सेठानी दुकान पर बैठी है। तो अब पुल्लिंग वाला वाक्य किस प्रकार से होगा, हाँ सेठ दुकान पर बैठे हैं, है ना। तो इस बात को हमें यहाँ पर समझना है। आइए कुछ और शब्द भी इसी प्रकार से देख लेते हैं, जैसे कि मटका, तो मटकी, रस्सा, तो रस्सी, सखा, तो सखी, माली, तो मालिन, लेखक, लेखिका, देवर, देवरानी, श्रीमान, श्रीमती, नेता, तो नेता। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको लगा होगा कि भाई हम तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में परिचित हैं, लेकिन यहाँ पर इस बात को फिर से दोहराने का आशय यह था कि जब भी हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों का वाक्य में प्रयोग करते हैं तो हमें कौन सी बातों को ध्यान में रखनी है और किस प्रकार से सही तरीके से हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों का वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से आप उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में भी पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं, लेकिन उनका भी एक छोटा सा अभ्यास यहाँ पर देख लेते हैं। आपको इन शब्दांशों को पढ़ना है और सोचना है कि यह उपसर्ग है कि प्रत्यय है। हाँ, ये उपसर्ग है, और उपसर्ग शब्द के आगे जुड़कर शब्द में परिवर्तन लाते हैं और हमें एक नया शब्द देते हैं। और वह शब्द भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं, विशेषण भी हो सकते हैं, विलोम शब्द भी हो सकते हैं, है ना, और समानार्थी शब्द भी हो सकते हैं। लेकिन उपसर्ग का उपयोग हम शब्द के आगे उपसर्ग को जोड़कर नए शब्द बनाने के लिए करते हैं। तो आइए अब इन उपसर्गों को जोड़कर आपको यहाँ पर नए शब्द बनाने हैं। तो देखिए मैं आपको कुछ शब्द यहाँ पर दिखाता हूँ, जैसे कि एक शब्द है भिन्न। अब आपको ये सोचना है कि ऊपर जो सूची दी गई है, जैसे कि वि, प्र, अ, दुर, अद, निर और गैर,
इनमें से भिन्न के आगे अब कौन सा उपसर्ग जुड़ेगा। कभी कभार ऐसा भी होगा कि एक से ज्यादा भी उपसर्ग इस शब्द के आगे जुड़ सकते हैं, तो आप ये भी आपको सोचना है। हाँ, अ भी जुड़ सकता है और इसके अलावा वी भी जुड़ सकता है, जैसे कि विभिन्न। अ जोड़ेंगे तो शब्द मिलेगा अभिन्न, है ना। तो यहाँ पर शब्द एक है, लेकिन अ और वी दोनों उपसर्ग ऐसे हैं जो इस शब्द के आगे जुड़ सकते हैं और हमें दो नए शब्द देते हैं। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि भाई इस प्रकार से कौन कौन से उपसर्ग को शब्दों के आगे जोड़ा जा सकता है। आइए अगला उदाहरण देखते हैं। देखिए, शब्द है पका। अब इसके आगे कौन सा उपसर्ग जुड़ेगा और इसका इस शब्द का अर्थ क्या है, ये भी हमें पता होना चाहिए, तभी हम सही रूप से उपसर्ग को जोड़ सकते हैं, है ना। तो वैसे तो आप खाना पकाकर खाते हैं, लेकिन जब खाना नहीं पकता तो उसके लिए भी एक शब्द का प्रयोग हम करते हैं, और वह शब्द कौन सा है जो हमें यहाँ पर मिलने वाला है। हाँ, कौन सा है, अध पका। तो यहाँ पर कौन सा उपसर्ग जुड़ा, अध और पका, है ना। पका यानी कि पूर्ण रूप से पका हुआ भोजन, और अध पका जो कच्चा रह जाता है उसके लिए शब्द प्रयोग करते हैं अध पका। तो ये दोनों विलोम शब्द हुए कि नहीं हुए। तो ही शब्द ऐसे ही उपसर्ग को जोड़कर हमें जो नए शब्द मिलते हैं वह भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। आइए अगला शब्द भी देखते हैं, योग। अब भी आपको यह सोचना है कि भाई योग के आगे कौन सा उपसर्ग जुड़ेगा, वी जुड़ेगा, प्र जुड़ेगा, अ जुड़ेगा, या इसके अलावा जो गैर, निर, अधुर, इनमें से कौन सा जुड़ने वाला है। कि भाई प्रयोग हो सकता है, लेकिन मैंने तो यहाँ पर वियोग रखा है, तो क्या सही है। हाँ, दोनों सही है। योग के आगे प्र भी जुड़ सकता है और योग के आगे वी भी जुड़ सकता है, तो हमें यहाँ पर दो शब्द मिलते हैं। वियोग भी सही है और प्रयोग भी सही है, और हर एक शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न होता है ना। तो आइए अगला उदाहरण देख लेते हैं, गम। अब भी आपको सोचना है, यह भी शब्द इसी प्रकार का है कि इसके भी आगे ऊपर में से दो उपसर्ग जुड़ सकते हैं, लेकिन वह कौन से हैं ये आपको सोचना है। तो देखिए, दुर्गम, है ना। यहाँ पर आप शायद ऐसा भी सोचेंगे कि ऊपर जो लिखा हुआ है दुर, और यहाँ तो सिर्फ दू है ना। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो हमें ग के ऊपर एक मात्रा दिखाई देती है वह र है। आप बोलकर देख लीजिए, दुर्गम, है ना। तो यहाँ पर र है, लेकिन कैसा है, आधा है, इसलिए तो वहां पर भी हलंत है। तो इस बात को भी हमें समझनी है कि जब शब्द नया बनता है, यानी कि शब्द के आगे ये उपसर्ग जुड़ता है, तब हम इस प्रकार से शब्द को लिखते हैं। और गम के आगे क्या ऊपर में से कोई और उपसर्ग जुड़ेगा, हाँ, निर्गम, ऐसा भी हम शब्द बना सकते हैं। आइए अगला शब्द देखते हैं, देश। हाँ, अब तो आपका उत्तर सही है और तैयार भी है कि भाई प्रदेश, और इसके अलावा देश तो विदेश, है ना। प्रदेश कहते हैं तब अर्थ बदल जाता है, विदेश कहते हैं तब भी अर्थ बदल जाता है। तो यह उपसर्ग की विशेषता है कि शब्द के आगे जुड़ता है और उसके अर्थ में बदलाव ला देता है। तो हमें यहाँ पर इस बात को अच्छी तरह से समझनी है। आइए इसी प्रकार से प्रत्यय से जुड़ा हुआ एक अभ्यास देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर 4 प्रत्यय रखे हैं, ई, ता, इक और तक, और इन प्रत्ययों का उपयोग करना है आपको और नए शब्द भी बनाने हैं। और प्रत्यय कहाँ जुड़ते हैं, हाँ, शब्द के पीछे। जिस प्रकार से हमने उपसर्ग के बारे में देखा कि शब्द के आगे जुड़ेंगे और हमें नया शब्द देंगे, इसी प्रकार से प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे जुड़ते हैं। तो इनके भी कुछ उदाहरण यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए, पहला शब्द है विदेश। देखिए, हमने उपसर्ग में इसी शब्द का प्रयोग किया था और हमें 2 शब्द नए शब्द मिले थे, प्रदेश और विदेश। देखिए, इसी शब्द का हमने उपसर्ग में प्रयोग किया था और देश का हमें विदेश शब्द मिला था, लेकिन अब तो ये विदेश शब्द है। और उसके पीछे आपको जो प्रत्यय दिए गए हैं उनमें से किसी एक प्रत्यय का उपयोग करना है और नया शब्द बनाना है। तो कौन सा बनेगा, हाँ, विदेशी। अब आपको लगेगा कि भाई यहाँ पर ये कौन सा प्रत्यय जुड़ा, तो ये ई जुड़ा, है ना। विदेश का क्या हो गया, विदेशी। तो हम जब बोलते हैं तब भी हमें पता चलता है कि भाई पीछे कौन सा प्रत्यय जुड़ता है, ई जुड़ता है।
तो ये तो हम लिंग परिवर्तन के जो नियम है उसमें भी इस बात को अच्छी तरह से समझे हैं कि भाई कई सारे ऐसे प्रत्यय हैं जो शब्द के पीछे जुड़कर पुल्लिंग शब्द का स्त्रीलिंग में परिवर्तन करते हैं। आइए अगला उदाहरण देखते हैं। चंचल, तो चंचलता, तो यहां पर तो आपको पता है कि भाई कौन सा प्रत्यय जुड़ा, ता। इसी प्रकार से प्रकृति, अब सोचना है आपको कि भाई इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ेगा। हाँ, प्राकृतिक, तो अब कौन सा प्रत्यय जुड़ा, इक, है ना। इस बात को आप शब्द को बोलकर अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि भाई प्रकृति, प्राकृतिक, इक अंत में बोला जाता है और इस बात को हम अच्छी तरह से समझे हैं। हंस, तब हाँ हंसी, है ना। तो इस बात को भी आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय से जुड़ा हुआ ये अभ्यास भी देखा और आपको लगेगा कि भाई उपसर्ग और प्रत्यय का अभ्यास तो हम पहले भी कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, तो इसकी क्या आवश्यकता थी। तो विद्यार्थी मित्रों, इसकी आवश्यकता यह है कि किसी भी भाषा को अच्छी तरह से बोलने के लिए, यानी कि भाषा का अच्छी तरह से प्रत्यायन करने के लिए हमारे पास शब्द ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, यानी कि हमारी शब्द समृद्धि अच्छी होनी चाहिए और उपसर्ग और प्रत्यय के जरिए हम कई नए सारे शब्द बना सकते हैं और जितनी ज़्यादा समझ हमारी बनती जाएगी उसी प्रकार से हमारी जो शब्द समृद्धि है वह भी बढ़ती जाएगी और जितनी ज़्यादा शब्द समृद्धि है हम उतना ही अच्छा भाषा में प्रत्यायन कर सकेंगे। यानी कि अच्छा प्रत्यायन अगर हमें करना है तो हमारे पास शब्द ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए और इसलिए आपको ऐसे अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करने चाहिए। मैं अपेक्षा रखता हूँ कि आप खुद अब इसी प्रकार से लिंग परिवर्तन के हो, उपसर्ग के हो, प्रत्यय के हो या भाषा से जुड़े हुए कोई भी अभ्यास हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करेंगे और अपनी भाषा को और भी ज़्यादा समृद्ध बनाएंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।